नमस्कार। संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। संसद संवाद में हम राज्यसभा में होने वाली महत्वपूर्ण चर्चाओं का सारांश आपको दिखाते हैं। राज्यसभा के मॉनसून सत्र में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी विधेयक 2017 पास कर दिया गया। ये बिल लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका था। इस बिल से 15 मौजूदा IIIT को डिग्री जारी करने के अधिकार के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर दिया गया है। PPP मॉडल पर चलने वाले इन संस्थानों में केंद्र, राज्य और उद्योगों की सहभागिता का अनुपात 50, 35 और 15% का है। आइए देखते हैं संसद में हुई इस महत्वपूर्ण चर्चा का सारांश। The Indian Institute of Information Technology Public-Private Partnership Bill 2017, Dr. Mahendranath Pandey to move a motion for consideration of the Indian Institute of Information Technology Public-Private Partnership Bill 2017. Mr. Minister. Honorable Sir, with your permission, Sir, I beg to move that the bill to declare certain Indian Institute of Information Technology established under public-private partnership as institution of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standard for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institution in incidental thereto thereto as passed by Lok Sabha by taken into consideration. सर, हमारी सरकार ने अभी अप्रैल में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और 19 जुलाई को लोकसभा से ये IIIT PPP मोड का ये बिल पारित हुआ है, उसे हम राज्यसभा में लेके आए हैं। देश में इस समय 15 IIIT वर्किंग में हैं। इस विधेयक को लाने का उद्देश्य हमारा है, एक तो इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना, दूसरा इस बिल के पारित होने से इनके स्टूडेंट्स को स्वयं डिग्री देने की क्षमता इन संस्थान में स्थापित हो जाएगी और इस बिल से इन संस्थाओं के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का भी ये कवर होता है। ये जगहें हैं कोटा, चित्तूर, गुवाहाटी, बड़ोदरा, त्रिचनापल्ली, सोनीपत, कल्याणी, पूना, मणिपुर के अंदर सेनापति, धारवाड़, कोट्टायम, नागपुर, रांची, लखनऊ और ऊना। ये 15 जगहें हैं जहां हम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप से वो व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट, इंडस्ट्री, इनके पार्टनरशिप से ये संस्थाएं स्थापित की गई हैं और अपने आप में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बेहतर स्टूडेंट्स को ज्ञान मिले और अच्छे ग्रेजुएट इंजीनियर्स, मास्टर्स इंजीनियर आगे निकलें। इस उद्देश्य से संस्थाओं के विस्तार के क्रम में हमारी सरकार ने कैबिनेट के डिसीजन के क्रम में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। राज्यसभा भी इसे पारित करे, यह आग्रह लेके हमारी सरकार यहाँ आई है। मैं आग्रह करूँगा इस पर विचार किया जाए। So, motion moved. Now, any members desires to speak? Mr. M.B. Rajiv Gora. Thank you, Vice Chairman, sir. I rise in support of the IIIT Public-Private Partnership Bill 2017. As the ministers laid out, 15 such institutions across the length and breadth of the country are going to be made institutions of national importance as a result of the passage of this bill. So, the field of information technology has made India proud, and it has made India reach the cutting edge of technological development in fields related to computer science and has allowed Indians to become champions and change the brand image of the country itself across the globe. Now, when we think about such a cutting-edge field and the field of education, it was important that we create more institutions and we do it with resources that are not only harnessed from the government, but also get the best
input and industry requirements so that we could make these institutions really cutting edge in everything that they do. And that is why the public-private partnership model was initiated, and it has proven to be a tremendous success. Not only are these institutions good at teaching very, very relevant and applied and useful courses, they are also focused on research, and that is something that we must commend them for. So, when we want to make the public-private partnership model work better, it is important that we ensure that the private players also get a more significant role in the decision-making. As I can see, currently the governing body has exactly 2 members from the private partners, from the private sector, while the remaining 8 are drawn from the government. And the Senate, which is going to be the body that affects the curriculum, has absolutely no representation for members from the private sector. So given that, it may be important for the minister to consider how, in the rules or elsewhere, this partnership can actually be turned into something more tangible by enhancing the representation of the private sector in both the governing bodies as well as in the Senate. So, one of the good things about these institutions is they've come up with courses that are relevant to fields of national importance, such as agriculture and rural development. And if you actually look at clause 7.2 of this bill, so the basic theme there is that these institutes have to serve the state, have to serve the needs of the regions that they're part of. And so it's not only being at the cutting edge of technology, but being at the cutting edge of technology in the service of the states and the regions. And therefore, it's important that these institutions open their doors and build those bridges and partnerships that will enable them to be relevant to the locations where they are. So, when you think about relevance, not just to the global IT sector, but to the country itself, one of the areas I would urge the minister to communicate to these triple ITs is the issue of cybersecurity. As we are moving towards a more digitally encompassing world, as all of us give out our Aadhaar data for everything under the sun, it is important that this data is guarded carefully and securely. And it is therefore important that these institutes create the courses to ensure that India has a cadre of cybersecurity professionals, that they create opportunities for ethical hacking, etc., which can then be harnessed by the government to ensure the best protection for our data. There have already been international attacks. They've attacked banking sectors elsewhere, and this is something that we cannot lose any time on in terms of moving ahead. So, other kinds of technologies that are really relevant to the country, we have been moving aggressively towards the mobile platform, and we are now very, very familiar with the concept of apps. But if you want this to really work, then it's important that these mobile apps are also developed in languages that are useful in those regions, which are understandable and intelligible to the users in those regions. So similarly, when it comes to fintech and all the developments that are taking place there, I would urge the minister to urge these institutes to focus on, blockchain technology, all kinds of developments that are taking place in terms of Internet of Things, in terms of machine learning and artificial intelligence. All these are sectors that really can benefit from these institutes. So the institutes also must play a role in triggering the startup culture. We have programs at state levels, like the startup policy in my own state of Karnataka. We have a national startup policy. But unless these institutes, which are there physically in different parts of the country, and also not necessarily in the main cities of these states, unless they become the homes for these startups, until they integrate lawyers and IP, intellectual property experts and others who can also help the local entrepreneurs, the startup community develop and strengthen, then they will be missing an opportunity. So I would urge them to put a lot of effort on that also. So another development, we keep talking, we hear about smart cities. There is a lot of work that needs to be done in the area of what is called civic technology. Harnessing technology for making our day-to-day life in urban areas much better.
And that is something that I would urge the Minister also to convey to these institutes when you meet the directors annually or otherwise, that these are priorities that will enable the government to do its job better and help the nation deal with the massive urbanization that we're facing. So these cannot just be technology-oriented disciplines. They must have a humanities component, some courses that focus on the ethical, human, social dimensions of technology. Otherwise, we will become too narrow-minded. We will not understand what the impact of these technologies are on society, on people, etc., etc. So I would urge that these also be undertaken. Finally, sir, I want to end on a small personal note. Many years ago, at least 10, 12 years ago, I had gone to the chairman of Infosys, at that time, Mr. Narayan Murthy, and urged him to devote some resources for programs that would be essentially affirmative action voluntarily in the private sector. He took that idea to the IIIT that existed across the road in Electronic City in Bangalore, and they created a program to identify outstanding smart Dalit students and give them a one-year program which would make them even more, which invest in them in such a manner that they would become cutting edge. And I had the honor of being invited to the graduation of that first program, and I'm really happy to see that such institutions can come up with these kinds of innovations which have a huge impact on socially disadvantaged communities and can serve as models for other such programs across the length and breadth of the country and ensure that we develop technology and these institutions in an inclusive manner. Thank you very much, sir, and I commend this bill to the House. Thank you. Now, Sri Basavaraj Patil. मान्यवर उपसभापति जी, आपके द्वारा यह जो माहिती तंत्रज्ञान के संबंधित एक विशेष बिल आज सदन में माननीय मंत्री द्वारा लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात हम सबको समझना चाहिए कि लगभग 150-200 साल पहले विश्व के अंदर भारत जीवन के सभी नए प्रकार के आविष्कारों में दुनिया के 100 संशोधन होते हैं तो उसमें 96-97 भारत में होते थे। उसके बाद इतनी तेजी से गिरावट आई है, हमारा सारा ये संशोधन यूरोप और अमेरिका के तरफ चले गया है और हम केवल 3 और 4 में लटके हुए पड़े हैं। तो इससे ऊपर आने के दृष्टि से सरकार इसे गंभीरता से सोचे। ठीक है, इस प्रकार के 15 संस्थान उसमें लाना है और कई लोगों का संस्थानों का प्रारंभ होकर कई साल हो गए हैं, उनको डिग्री देना है, सर्टिफिकेट देना है और समय के अंदर ये पास नहीं करेंगे तो वो विद्यार्थियां 20 रास्ते पर खड़े हो जाएंगे। परंतु IIIT का ये जो शिक्षा पद्धति है, इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि तीव्र गति से इन अनुसंधानों के रास्ते में जाते जाते कहाँ हम भटक रहे हैं। अभी भी हम रोज अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ के बात करना चाहते हैं। दिन में कम से कम 10-20 बार इसी एक आदमी को बात करने के लिए 2 बार कट होता है, 3 बार कट होता है, वन वे ट्रैफिक होता है। अगर इन विकृतियों के साथ अगर हम विकास के रास्ता को करेंगे तो शायद इस स्पर्धा की दुनिया के अंदर, इस नई तंत्रज्ञान के अंदर हम उतनी तेजी से नहीं जा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के नए संस्थानों को खोलते समय इन चीज़ों को गहराई से सरकार को सोचना चाहिए कि इसकी परिपूर्णता हो, इसमें दोष ना हो। और साथ ही साथ इस प्रकार के संस्थानों को जब अलग अलग स्थानों पर सरकार खोलने के लिए निकलती है तो ऐसे कई बार आते हैं कि किसी विशिष्ट कारणों से कहीं खोला गया है। हम जानते हैं कि अपने देश में 370 में जम्मू कश्मीर आता है, 371 में इस देश के कुछ पिछड़े हुए इलाके आते हैं जिनका विकास करना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या इसमें से एक भी संस्थान, इस प्रकार के 371 के क्षेत्र का एक भी संस्थान प्रारंभ किया गया क्या? हैदराबाद कर्नाटक प्रदेश का जो भाग है वहाँ के लोग करा रहे हैं, उन्होंने सपना देखा था कि IIT आएगा, IIIT आएगा, लेकिन उन्हें आंसू बहाना पड़ा, उन्हें तकलीफ करना पड़ा कर्नाटक प्रदेश के अंदर।
इस प्रकार के संस्थानों को, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को उन प्रदेशों के अंदर प्रारंभ करके एक सोशल जस्टिस का काम भारत सरकार जरूर कर सकती है। इसके तरफ सरकार जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन के बारे में, लेकिन एक बात मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जैसे राजू गौड़ा जी ने कहा, एथिक्स, मॉरल, नैतिकता, जिस बातों के तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो हम पशु बन जाएंगे। इस प्रकार के संस्थानों में एडमिशन पाना ही कठिन होता है, लेकिन जो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं लगभग 44% विद्यार्थी पास नहीं कर पाते हैं। वहाँ के परिसर ऐसा है, वहाँ स्टाफ का अभाव है और वातावरण ठीक नहीं है। इसमें कहाँ दोष हो रहा है? क्या हम कुछ गुणवान बच्चों को तैयार करने जा रहे हैं, क्या कुछ गलत बच्चों को तैयार करने जा रहे हैं? और इतनी बड़ी ड्रॉप आउट, इतने कंपटीशन के बाद, सीट मिलने के बाद भी अगर वो पढ़ाई पूरा नहीं करता है तो कहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है, कहाँ दोष हो रहा है? इसके बारे में सरकार गंभीरता से सोचना चाहिए। प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे भी नारायण मूर्ति इन्फोसिस के उस मालिक से मिलने का मुझे एक बार मौका मिला। लगभग 40 मिनट की बात हुई। 2 महीने पहले उन्होंने उस समय कहा था कि भारत के लिए लगभग 10 लाख नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा अगर 10 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी खोलना है तो कम से कम 300-400 कंपनी के मालिक चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। आज इस देश के इंजीनियर किए 55 लाख इंजीनियर रास्ते पर खड़े हैं, 5-10 हज़ार रुपए में नौकरी करने के लिए तरस रहे हैं। क्या इसीलिए हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला? गए साल 2,70,000 सीट इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली रहे। ऐसी स्थिति इस राष्ट्र की गौरव की आईआईटी का न बने, इसके लिए जब कभी भी नया जगह इसका खोला जाएगा, इसका एक एक विद्यार्थी इस राष्ट्र के निर्माण के काम में आना चाहिए। हम सब लोग हमारे बच्चों को बचपन से नौकरी की नशा इतना चढ़ा रहे हैं कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस दिशा में इस IIIT के जो विशेष बिल सरकार यहाँ पर लाई है, मैं इसका पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूँ और शिक्षा मंत्रालय आने वाले भारत के भविष्य के दृष्टि से इन विषयों के बारे में गंभीरता सोचकर राष्ट्र को नई दिशा देने का एक विशिष्ट प्रयास आदरणीय मोदी जी की सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप इसको पीपीपी के माध्यम में तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपने शर्तें जो रखी हैं कि जो भी खर्च होगा 50% केंद्र सरकार का, 35% राज्य सरकार का और 15% निजी क्षेत्र लगाएगा। निजी क्षेत्र को जब तक उसकी ओनरशिप या उसका मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, क्यों 15% लगाएगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नरेश अग्रवाल जी। मैं मंत्री जी इतनी कहना चाहता हूं
कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं हुए, खाली अगर हमने बिलों को पास करा लिया, लेकिन अगर उसकी सत्यता पे हम न गए, तो हमारे भाई पाटिल जी जो भी बोल रहे थे, वो स्थिति इस देश के सामने खड़ी होने वाली है। शिवन, आप इसको पीपीपी के माध्यम में तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपने शर्तें जो रखी हैं कि जो भी खर्च होगा 50% केंद्र सरकार का, 35% राज्य सरकार का और 15% निजी क्षेत्र लगाएगा। निजी क्षेत्र को जब तक उसकी ओनरशिप या उसका मैनेजमेंट नहीं मिलेगा कि वो 15% लगाएगा। आप कहते हैं बस निजी क्षेत्र का एक डायरेक्टर नियुक्त कर देंगे, बाकी बोर्ड में सब आपके लोग रहेंगे। राज्य सरकार किसी एक को चुनेगी, चुन के आपको रिकमेंड करेगी, 100 एकड़ जमीन देगी राज्य सरकार। आपने ये भी नहीं स्पष्ट किया जो 100 एकड़ जमीन दी जाएगी उसको भी 50, 35, 15 में बांटा जाएगा या 100 एकड़ वो पूरी दान में होगी। शिवन, आज दुर्भाग्य है इतने वर्षों के बाद भी विश्व के अगर 100 यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाए तो हमारा हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक इंस्टीट्यूट नहीं हमारा। क्यों ऐसा कारण? क्या कभी हमने इस पर सोचा? आज आपको मालूम है इंजीनियरिंग की छात्र संख्या इतनी घटती चली जा रही। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने, यूपी में भी बहुत इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अभी जो एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम कराए, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, जितनी सीटें हैं उतने लड़के टेस्ट में नहीं बैठे, क्योंकि इंजीनियर पास करके जाता है, टूल टैक्स पर 5,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। अब जो इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हो अब वो टूल टैक्स पर अगर 5,000 की नौकरी करेगा, आप शिक्षा को जब तक रोजगार के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी स्थिति देश की नहीं आ रही। या तो आप जनसंख्या पे रोक लगाएं, और जनसंख्या पे आप अगर रोक नहीं लगा रहे हैं और देश अगले 10 साल में हिंदुस्तान नौजवानों में सबसे बड़ा देश हो जाएगा विश्व में। आप उन्हें पढ़ाएंगे, आपने 2 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, 2 करोड़, आप 3 साल हो गए 6 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन नौकरी के बाद तो जो फिगर आई है बेरोजगारी की, इतनी तेजी से गिरावट हुई है, बल्कि सारे इंस्टीट्यूट, सारे संस्थान छटनी का काम कर रहे हैं, नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। अकेले रियल एस्टेट में 13 करोड़ लोग काम करते थे, रियल एस्टेट खत्म होने के बाद 12 करोड़ लोग उसमें बेकार हो गए, खाली एक रियल एस्टेट। रक्षा मंत्रालय में आपको 100% FDI अलाउ करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा जब तक आप पूरा हमको मालिकाना हक नहीं देंगे हम पैसा नहीं लगाएंगे। कौन लगाएगा? 15% शेयर में हम भी व्यापारी हैं, निजी क्षेत्र के हैं, हम भी कॉलेज चलाते हैं। अपने देश में अगर प्राइवेट लोगों ने एजुकेशन को इतना आगे बढ़ाया है, निजी क्षेत्र की आज 80% भागीदारी है एजुकेशन में, और शायद शिक्षा को आज एक बड़े स्तर पर ले जाने का काम निजी क्षेत्र ने किया है। लेकिन उस निजी क्षेत्र को आप बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं? अब आज के ज़माने में आप कहिए कि 100 एकड़ ज़मीन ले आओ तब यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो श्रीमान 100 एकड़ कहाँ मिल जाएगी? हम कहते प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनते? मैं आपसे इतना कहूँगा, इसको आप संशोधित करिए। आप 50, 35 और 15 के माध्यम से अगर पीपीपी को लाना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, आपके एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे। मैं तो इतना चाहूँगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी में आप यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान में कोलैबोरेशन में लाना चाहता है तो आप उस पर विचार करिए, और जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे हम विश्व में कहीं कंपटीशन में फेल ना हो जाएं। इन चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। और मैं तो जब प्राइवेट क्षेत्र खुद ही इतना इन्वेस्ट कर रहा है
तो पीपीपी लाने की जरूरत क्या है? आप उनको ऑफर दीजिए तो प्राइवेट से पूरा पैसा लगा दे। 15% की आपको बात कर रहा है। आप क्वालिटी पे उनके प्रतिबंध लगाइए, अच्छी क्वालिटी दीजिए और अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। मैं इसे पास करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप फिर से ठंडे मन से इस पर सोचिएगा और निजी क्षेत्र को आप तमाम अगर मानक बनाकर उस निजी क्षेत्र की भागीदारी से फायदा उठाना चाहेंगे तो निश्चित आपको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीपीपी मॉडल पर बने इन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में केंद्र, राज्य और उद्योग की सहभागिता का अनुपात 50, 35 और 15% रखा गया है। सांसदों की राय है कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। जनहित के मुद्दों पर राज्यसभा में होने वाली चर्चाओं से संबंधित कार्यक्रम संसद संवाद के अगले 2 अंक में जानेंगे कि इस बिल पर बाकी सांसदों ने सदन में क्या विचार रखे और मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने क्या जवाब दिया। तब तक के लिए नमस्कार। So in this bill, it is mentioned the recurring expenditure in the first 5 years of operation will be made available by the central government. Sir, here I need to ask that what about the recurring expenditure after the completion of the first 5 years? Who is exactly responsible for it if some recurring expenditure still exists after this 5 years? And sir, will those costs be transferred to students via increase in fees?